In last lecture we covered up to section 6 and now we'll cover section 7. And what does it talks about? It says persons competent to transfer, means who can transfer. It says this is the Barak language which I have decoded this way. Any person competent to contract. Any person meaning thereby the competency. Competency can be taken from Contract Act. If you see section 4, it says the chapter and section of this act, means TPA. This is TPA Bayer Act. Chapter and section of this act which relate to contract shall be taken as part of Indian Contract Act, meaning thereby whatever chapters and sections covered under Transfer of Property Act TPA and they relate to contract, they shall be taken as part of Indian Contract Act. This section requires competency. So any person competent to contract, meaning thereby will go to section 10 or will section 10 of Indian Contract Act, and as per Indian Contract Act we'll see the competency. Entitled to transferable property. Any person competent to contract, first thing is if he is competent to contract, second thing he is entitled to transfer the property. If he is absolute owner, he is entitled to transfer the property. One example for this. Then, or authorized to dispose of transferable property not his own. The property which is not his own, still he can transfer it. For example, agent, for the purpose of understanding, agent, they are authorized to dispose the property of their principal. And then section 38. Section 38 talks about transfer by person authorized only under certain circumstances to transfer. For this video lecture has been made and uploaded. For more reference you can go to that lecture in the playlist. So the person who is competent to contract, who is entitled or authorized to dispose the property, can transfer the property. How? Either absolutely, means transfer without any condition. Property would be enjoyed by the transferee without any restriction. So he can transfer either absolutely or conditionally. Now section 25 to 35, conditional transfer. 25, conditional transfer. 26, fulfillment of condition precedent. Okay, so all these sections deals with conditional transfer, for which another video will be there soon. So either absolutely or conditionally. Second, or wholly means whole part, whole property, or in part of the property. For example, property is 1 acre. So if he sells whole 1 acre, that is whole property. But if he sells half acre, then in part, and to the extent and manner allowed and prescribed by law. For example, section 13, 14, 13, transfer to unborn, 14, rule against perpetuity, 11, read with 40, which for all the section there will be video very soon. And in fact all the general rules in transfer of property and other applicable law will be there. So this can be transferred only to that extent and to that manner. Now again, person competent to contract. कौन व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं? फर्स्ट सेक्शन कहता है एनी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है, जैसे कि हम सेक्शन 10 में देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, वो कहता है कि जो भी चैप्टर और सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं तो उनको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हो. तो जहां पर हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, कोई कब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बात करता है. तो हम वहीं से कॉम्पिटेंसी को चैनलाइज करेंगे. और यह व्यक्ति एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, या ये अथॉराइज्ड है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जो इसकी नहीं है, जैसे कि एजेंट. या सेक्शन 38 में जिनका प्रॉपर्टी पे पूरा मालिकाना हक नहीं है लेकिन वो फिर भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, वो सर्टेन सर्कमस्टांसिस में ही, जैसे इमरजेंसी हो गई उसमें ही
ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति के लिए कॉम्पिटेंट है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब उसके पास टाइटल है, एब्सोल्यूट ओनर है, या अथॉराइज्ड है किसी और की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे एजेंट हो गया या सेक्शन 38 एग्जाम्पल लिया, कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ओके, कंपिटेंसी, एंटाइटल्ड और अथॉराइज्ड, दीज कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। कैसे? ईदर एब्सोल्यूटली, या तो बिना किसी कंडीशन के उसको प्रॉपर्टी को पूरी को निहित कर देंगे ट्रांसफरी में, बायर में, और बायर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, या उस प्रॉपर्टी को वो कंडीशनली भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 25 से 35 बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर की। कंडीशन सब्सिक्वेंट भी है, तो इसके लिए अलग से एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे। अभी समझने के लिए इतना बताया गया है कि वो कर सकते हैं, या फिर उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, उस पूरी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, या पार्ट में आधा एकड़ है उसको सेल कर रहे हैं, बाकी को सेल नहीं कर रहे, तो ये व्यक्ति सेल कर सकते हैं। और कैसे? टू द एक्सटेंट एंड मैनर, एक्सटेंट एंड मैनर अलाउड एंड हो गया। 13 बात करता है ट्रांसफर टू अनबॉर्न, 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, 11 रीड विद 40 बात करता है कि ट्रांसफरी और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को किस तरीके से बाउंड किया जा सकता है कॉवेनेंट से, ये कंडीशन रिगार्डिंग एलियनेशन में ही आता है। लेकिन इनफैक्ट जितने भी जनरल रूल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के वो सब अप्लाई होंगे। तो क्या कहता है ये? एनी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो, एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जिसके पास टाइटल हो, एंटाइटल हो, एब्सोल्यूट ओनर हो, वो सेल कर सकता है, या अथॉराइज्ड हो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जिसका वो मालिक नहीं है। सो ऐसा व्यक्ति जो कंपिटेंट है, एंटाइटल्ड है या अथॉराइज्ड है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? या तो एब्सोल्यूटली या कंडीशनली, या तो होली और इन पार्ट। और किस हद तक कर सकता है? एक्सटेंट एंड मैनर, जैसा कि कानून में लिखा गया है। होप ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट बॉक्स में